Okay, so we will move ahead with JEE NEET level questions. और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सीईटी सेशन में सॉल्व किए हैं. ऑसिलेशन चैप्टर में यू विल नॉट फाइंड क्वेश्चंस वेरी डिफरेंट इन ऑल दिस थ्री फॉर्मेट्स ऑफ एग्जाम. सीईटी जेईई नीट लगभग सब सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, जो क्वेश्चन बहुत बार हुआ वो मैंने डिलीट कर दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो बहुत बार हमारा वो हो गया होगा ऑलरेडी. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड, बट लेट अस सॉल्व दिस अगेन. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 2 centimeter. When the particle is 1 centimeter from the mean position, अब देखो वहां पे वैल्यूज अलग थे, यहाँ पे वैल्यूज अलग है. वहां पे एम्पलीट्यूड था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर. वहां पे पोजीशन था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पोजीशन है 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब a/2. करेक्ट. तो जब x इक्वल टू a/2 होता है तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. टाइम इक्वल टू t/12, टाइम पीरियड बाय 12. दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. अब when the particle is at 1 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to its acceleration. Magnitude of velocity is equal to magnitude of acceleration. This is omega under root of a square minus x square, and this is omega square a. ये मतलब x. ओमेगा स्क्वायर का एक ओमेगा और एक ओमेगा कैंसल. a square minus x square, x is a/2, so root of a square minus a square by 4 equal to x. What is x? What is x? a/2 और ओमेगा बच गया. Good. This is how much? √3 a/2. √3 a square by 4. 4 का √2 a square का a. a/2 cancel. तो a/2 cancel. What is omega? Omega 2π/t. क्या पूछा है आपको? पूछा क्या है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड पूछा है ना. तो ओमेगा कितना आया? √3. ओमेगा कितना है? √3. व्हाट इज ओमेगा? 2π/टाइम पीरियड. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2π/√3. 2π/√3. अब अगली बार से आप रख लो अगली बार से. अगर magnitude of velocity and acceleration are equal along with x equal to a/2, ये दोनों जब इंफॉर्मेशन दी होगी तो स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन नंबर 1, t is time period by 12, and number 2, time period is 2π/√3. हो गया क्वेश्चन खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Particle is executing simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta. Then its time period of vibration will be. Joke. Maximum acceleration in x. याद है क्या इक्वेशन? a omega square a. इसको क्या बोला है इन्होंने? अल्फा. What is maximum velocity का मैग्नीट्यूड? a ओमेगा. इसको क्या बोला है? बीटा. और पूछा क्या है? टाइम पीरियड. दोनों को डिवाइड कर दो. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2. 1/2. तो यू हैव ओमेगा स्क्वायर a अपॉन a ओमेगा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा. एक ओमेगा a और a हो गया कैंसल. ओमेगा इज अल्फा बाय बीटा. बट व्हाट इज ओमेगा? 2π टाइम पीरियड. So it is 2π/time period equal to alpha by beta. Therefore time period t equal to 2π beta by alpha. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 2π beta by alpha. ऑप्शन नंबर 3. 2015 नीट. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. फोर्थ छोड़ दिया, मतलब ऑलरेडी हुआ होगा. A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and it's moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meters per second square at a distance
of 5 meter, x equal to 5 पे a की वैल्यू देके रखी है from the mean position. The time period of oscillation is simple question. See what you have been given is a कितना 20 meter per second square at x equal to 5 meter. आपको पूछा है what is the time period of oscillation. So do you know acceleration is omega square x? I know it is minus omega square x, लेकिन मैं magnitude की बात कर रहा हूँ. So a equal to omega square x. This is 20. Omega square x is 5. X की वैल्यू कितनी है 5. You have 5 ones and this is 4. So omega square is 4. So what is omega? 2. So omega square is 4. So omega is 2. But what is omega? 2 pi by time period. 2 और 2 हो गया cancel. तो time period कितना आएगा 5 seconds. And that is 2018 NEET question. 5 option number B. Done. Next question. Well, okay. Well, sequentially 6 number question है, ठीक है. A body of mass m is attached. A body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. Upper end हमने rigid support को लगा दिया. Horizontal rigid support. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kilogram, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kilogram is simple and easy. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, हमने पहले भी सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन, सेम नहीं बट सेम टाइप का. So the idea here is we have a spring. इसके लोअर एंड पे हमने एक मास अटैच कर दिया, सम मास m. We have attached some mass m over here, right? So in this case, period of oscillation कितना दिया है 3 seconds. तो एक्सट्रीमली सिंपल, जब मास m1 है स्मॉल m, तो m1 इक्वल टू m, टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 3 seconds. मैं काम करता हूँ, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, मैं इसको m से डिनोट करूंगा, टाइम पीरियड है 3 seconds. गुड. अब एडिशनली सेम स्प्रिंग पे आपने एक एक्स्ट्रा मास लगा दिया. कितना एक्स्ट्रा है ये 1 किलोग्राम. हाउ मच एक्स्ट्रा इज देयर 1 kg. दिस इज 1 kg. पहले से कितना था, पहले से था m, अब कितना है m plus 1. तो व्हाट इज m dash? m plus 1. व्हाट इज t dash? 5 seconds. तो क्वेश्चन में यही बोला है, a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it performs oscillations with a period of 3 seconds. 3 seconds, correct है. When the mass m is increased by 1 kilogram, मतलब m dash is n plus 1. Time period is 5 seconds. Find what is the value of m in kg. How do you find this? Time period is 2 pi by omega. Omega is root of k by m. So time period is 2 pi under root of m by k. So someone just said time period is directly proportional to square root of m. Good. So if time period is proportional to square root of m, so t dash by t will be equal to root of m dash by n. T dash is 5, t is 3, m dash is m plus 1, and पहले केस में तो m ही था. M dash is n plus 1. Okay. Squaring on both sides, 25 by 9 बराबर ना. स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो गया कैंसल. क्रॉस मल्टीप्लाई 25m इक्वल टू 9m plus 9. 25m minus 9m is 16m equal to 9. So m is 9 by 16 of a kg. 9 by 16 of a kg. Option number A. Done. 2016 NEET. Next question. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे. वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. 2017 NEET exam again. A spring of force constant K is cut into length of ratio 1:2:3. तो पहले तो समझ लो क्वेश्चन, एक एक सेंटेंस पहले पढ़ लेंगे.
हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट के है उसका, इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। मतलब आपने इसके 3 पीसेस कर दी, तो यू आर कटिंग दिस इनटू 3 पार्ट्स। L1, first spring of length L1, second spring of length L2 and third spring of length L3। करेक्ट। तो मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। They are connected in series and the new force constant is K dash. This is called as kidding with you. They are kidding with you. पहले तो कट किया, फिर वापस से उसको सीरीज में ज्वाइन कर दिया। तो मुझे बताओ, अगर एक स्प्रिंग को मैं कट करता हूँ वापस सीरीज में ज्वाइन करता हूँ तो सेम स्प्रिंग बनता है कि नहीं? हाँ, तो फिर के डैश की वैल्यू क्या आएगी वापस से? के। तो सॉल्व करना नहीं। तो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, when connected in series, spring constant K dash is equal to K again, right? वायर को, रस्सी को काटा 3 पार्ट में, वापस सीरीज में लगा दिया, तो सेम ही है, नथिंग चेंजेस। एंड उसके बाद बोला है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या बोला है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश। अब जब हमने इन 3 स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। So now when you connect this in parallel, you know springs or strings in parallel behave like resistance in series. Pakka? Sure. 100% sure. Parallel. Yes, series. Are you sure? Okay. फिर अगर आप बोल रहे हो सीरीज, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें इक्विवेलेंट क्या बोला है? के डबल डैश। तो ये क्या आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। करेक्ट। लेकिन K1 K2 K3 पता है क्या हमको? नहीं पता। तो पहले K1 K2 K3 फाइंड करना पड़ेगा आपको, राइट? तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, स्प्रिंग्स इन पैरेलल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। बट K1 K2 और K3 फाइंड करने के लिए यू नीड टू नो सम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड सम बेसिक्स ऑफ मैथ्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू नीड टू नो इज, सबसे पहले, डू यू इवन रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर कि ये जो फोर्स F है ये आता है kx। अब फोर्स माइनस kx, मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन x। लेकिन डू यू रिमेंबर दिस x वाज एक्सटेंशन, राइट? तो एक्सटेंशन मतलब लेंथ। तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना स्प्रिंग का लेंथ होगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो K1 इज टू K2 इज टू K3 अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा? 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3। अब आप बोलोगे ये करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे पास रेशियो किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? लेंथ का। किसका दिया हुआ है? लेंथ का। हमारे पास फोर्स कांस्टेंट्स का रेशियो है ही नहीं, हमारे पास लेंथ का रेशियो है। हमारे पास क्या है? L1 इज टू L2 इज टू L3। व्हाट डू यू हैव इज, यू हैव L1 इज टू L2 इज टू L3, दैट इज नथिंग बट 1 इज टू 2 इज टू 3। is that clear? So what is 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3? So 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3 is 1 is to 1, 1/2 and 1/3. Correct? K1 is to K2 is to K3 is equal to 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3, but 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3 is equal to 1 is to 1/2 1/3। इसके बाद क्या करते हो, याद है क्या? इक्वलाइज
that is called as LCM GCD, something like that. पता है क्या करते हैं इसके बाद? नहीं यार, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 6 into 1 is 6, 6 into half is 3, बराबर ना? दिस इज 2। इसके बाद पता है क्या करते हो? इसके बाद पता है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, जो आपको पसंद है वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। लेट अस से p, तो k1 विल बी 6p, k2 विल बी 3p एंड k3 विल बी 2p। ये डमी वेरिएबल होता है, इसको आप k बोलो, इसको आप m बोलो, इसको आप n बोलो, इसको आप p बोलो, जो बोलना है वो बोलो, डजंट मैटर। तो ये मैथ्स है, ये मैथ्स पता होना चाहिए, स्कूल लेवल का मैथ्स है, राइट? तो सबसे पहले you have to multiply with something called as LCM की GCD। तो आज घर पे जाके 8, 9, 10 का मैथ्स रिवाइज करोगे। हाँ, तो पहले रिवाइज करोगे, फिर याद आएगा कि इसको LCM बोलते हैं कि इसको GCD बोलते हैं। अभी वो आप रिवाइज करो। गुड। तो एनीवेज आई कैन जस्ट टेल यू मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ गया ऐसा। नाउ लुक, मैंने आपको अभी अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये ना, ये डमी होता है, डमी। डमी मतलब मैं इधर जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, तो मैं के भी लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज के डबल डैश? व्हाट इज के डबल डैश? k1 प्लस k2 प्लस k3। व्हाट इज k1? 6k। 6k। व्हाट इज k2? 3k। व्हाट इज k3? व्हाट इज 6 प्लस 3 प्लस 2? तो k डबल डैश कितना है? 11k। k डैश कितना था? k। तो k डैश अपॉन k डबल डैश क्या आएगा? k अपॉन 11k। तो क्या आएगा? 1/11। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by। अब ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2019 नीट का क्वेश्चन है। हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दिया है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ दैट पार्टिकल इज y इक्वल टू a0 प्लस a sin omega t प्लस b cos omega t। Then the amplitude of its oscillation is given by। See, the thing is, displacement equation y equal to a sin omega t प्लस b cos omega t जब हो, तो इस केस में सबसे पहला क्रॉस चेक, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, है। दोनों हार्मोनिक है। हार्मोनिक मोशन प्लस हार्मोनिक मोशन इज अनदर हार्मोनिक मोशन। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर है a0, तो फिर क्या आएगा आंसर? प्लस a0। यहाँ हो गई गलती आपसे, क्योंकि ये हार्मोनिक है क्या? दिस इज नॉट हार्मोनिक, दिस इज नॉट हार्मोनिक, दिस इज जस्ट सम कांस्टेंट। तो आपको ये बताता क्या है फिर? आपको ये बताता क्या है? लुक, और क्योंकि यहाँ पे मोशन अलोंग y एक्सिस है, तो मैं y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर अलोंग x एक्सिस होता तो मैं अलोंग x ड्रॉ करता, डजंट मैटर। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास दो SHM है। सपोज हमारे पास पहला SHM है, वी हैव सम पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, वी हैव अनदर SHM स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। Suppose this is a sin omega t, this is b cos omega t। अगर मैं दोनों मोशन को कंबाइन करके देखता हूं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू a sin omega t प्लस b cos omega t। अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करता हूं, तो कांस्टेंट ऐड करने का सिर्फ मतलब यह होता है कि जो पार्टिकल्स का मोशन है थोड़ा शिफ्टेड, इट इज शिफ्टेड बाय सर्टेन अमाउंट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो सम कांस्टेंट मतलब इट इज जस्ट शिफ्टेड बाय सर्टेन अमाउंट, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं एक सिंगल लिखता, तो सिंगल का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं हो रहा, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? a0 प्लस समथिंग, राइट?
तो a sin omega t plus a naught, तो ये जो a naught है this is constant, this just tells you that the particle has some extra constant in its motion, it is not harmonic in nature। अगर हार्मोनिक नहीं है तो फिर एम्पलीट्यूड में इसको लोगे क्या? ऑप्शन नंबर नथिंग टू सॉल्व। गुड। तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सोचोगे ना हाँ ये पहला टर्म नहीं था तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अभी एक टर्म और डाल दिया तो या तो बी आएगा या तो डी आएगा, दोनों ही नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर मैं इसमें और ऐड करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ ए नॉट डैश, तो भी यही आएगा। मैं और ही ऐड करता हूँ ए नॉट डबल डैश, फिर भी आंसर यही आएगा। तो आंसर विल बी द सेम। डन, नथिंग टू सॉल्व, नथिंग टू राइट, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। 2019 again, the radius of circle, the period of revolution and initial position and sense of revolution। Radius of circle, period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in figure। एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सारा ही इंफॉर्मेशन हिडन है, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। तो यू हैव अ डायग्राम, इस डायग्राम में आपको रेडियस मिल जाएगा, मिल गया क्या रेडियस, दिखता है क्या रेडियस कितना है 3, कितना है 3, रेडियस मिल गया, यस। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड लिखा है यहाँ पे 4, इनिशियल पोजीशन लिखा है यहाँ पे, दिखा है यहाँ पे। ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि पार्टिकल वाज एट y एक्सिस एट t इक्वल टू 0 एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन इज क्लॉकवाइज, करेक्ट। So the particle is going clockwise. Y projection of radius vector, Y projection हमने X projection सीखा था, याद है क्या? Do you remember there was a topic called as projection of a particle performing UCM as SHM, याद है? जब पार्टिकल 2D मोशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। डू यू रिमेम्बर? पक्का? यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन सा प्रोजेक्शन है? y। y प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इज, इट इज कंप्लीटली अ जोक, बट प्रोवाइडेड फिजिक्स के जोक समझ में आने चाहिए। y प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे ले रहे हो? y एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? y axis, very good, projection is along y axis। देखो जब प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस लिया था तब क्या हुआ था? तब अगर पार्टिकल यहाँ पे है और प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहाँ पे है? मीन पे। सब भूल गए, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, क्योंकि यू आर नॉट रिवाइजिंग एट ऑल, यू आर नॉट एट ऑल रिवाइजिंग। थोड़ा रिवाइज कर लेते तो सब समझ में आ जाता। मैंने बताया था, बता देता हूँ। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, इसका प्रोजेक्शन यहाँ था, फिर पार्टिकल अपने मोशन में आगे गया तो उसका प्रोजेक्शन भी आगे गया, याद है क्या? डू यू रिमेम्बर दिस? यस, नो, यस। Particle when goes to new position p dash, its projection is at m dash। मैंने ये भी बताया था कि पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसका प्रोजेक्शन भी यहीं पे है, करेक्ट। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो प्रोजेक्शन कहाँ पे है? एम्पलीट्यूड पे है। तो पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम से, मतलब कॉस आएगा कि साइन आएगा? कॉस। वेरी गुड, कॉस आएगा, एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताओ, हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन आप कौन से एक्सिस पे देख रहे हो? और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वो y एक्सिस पे है, और प्रोजेक्शन भी किसका है? y एक्सिस। मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया? Pay attention here. We had a particle, had मतलब हमने पहले करके लिया है तो वापस अभी रिवाइज करना है। उस केस में हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे थे एक्स एक्सिस पे,
पार्टिकल अगर यहाँ पे है समवेयर ओवर हियर, ओ रिमेम्बर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने बोला था रेफरेंस पार्टिकल, और इस सर्कल को बोला था रेफरेंस सर्कल। और हमने ये बोला था कि इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल इज अल्फा। अगर आपको याद होगा तो जब पार्टिकल पी पे है उसका प्रोजेक्शन कहाँ था, एम पे, ये इनिशियल फेज था। फिर पार्टिकल कुछ टाइम के बाद न्यू पोजीशन पे आया, कौन सी पोजीशन पे आया, पी डैश पे आया, इसका पोजीशन कहाँ आ गया, एम डैश पे आ गया। इस एक्स्ट्रा टाइम में इसने कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना हो गया था, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये एंगल कितना आया था, 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। आ रहा है याद अभी थोड़ा थोड़ा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इनिशियल फेज जीरो हो, इनिशियल फेज जीरो होना मतलब पार्टिकल कहाँ पे होना, एक्स एक्सिस पे होना। अगर इनिशियल फेज जीरो है किसका, रेफरेंस पार्टिकल का, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन मीन पे है कि एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे है, करेक्ट। अगर यही पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे होता तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होता, मीन पे होता। तो पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया होता, मीन से स्टार्ट किया होता। वो कब, जब आप प्रोजेक्शन देख रहे हो कौन से एक्सिस पे, जहां आप प्रोजेक्शन किस पे देख रहे हो, और पार्टिकल वाई एक्सिस पे ही है, तो पार्टिकल ने अलोंग वाई एक्सिस मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया। तो कॉस आएगा कि साइन आएगा, when the particle starts its motion from extreme position, you always have cos, you never have sin. तो पहली बात तो never have sin, तो sin का यहाँ से हटाओ, गया ही, गया क्या, yes, यहाँ तक क्लियर, पक्का, अब पक्का। अब do you remember when the particle starts from mean position, x equal to a sin omega t, y equal to a sin omega t। अगर मोशन along x है तो a sin omega t, along y है तो y equal to a sin omega t। But when the particle starts from extreme position, अगर along y axis है तो y equal to a cos omega t। याद है कि जितना सर्कल का रेडियस होता है उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। तो y equal to 3 cos of omega, what is omega, 2 pi by time period, 2 pi by t, capital T into small, what is capital T, 4। तो t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4, क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4, तो 2 pi by, करेक्ट, क्योंकि ओमेगा है 2 पाई बाई टी और टी कितना है 4, तो कितना आ गया पाई बाई 2। तो y इक्वल टू 3 कॉस ऑफ पाई टी बाई 2। ऐसा कहीं पे दिखता है क्या, ऑप्शन नंबर ए, खत्म, डन, देयर इज नथिंग एल्स टू सॉल्व। अगर यही प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस बोला होता तो x इक्वल टू a sin पाई टी बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 sin पाई टी बाई 2। वैसे तो दिया नहीं है ऐसा ऑप्शन में, करेक्ट, क्लियर, श्योर, एनीवन स्टिल कंफ्यूज विद दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज दिस, कौन सा प्रोजेक्शन है, और पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, y x पे नहीं था, वो y पे था, y एक्सिस पे था, y एक्सिस पे था। तो पार्टिकल ने मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट किया कि मीन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, तो क्या आएगा, cos। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब कौन, रेडियस, और ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक, अब ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट एंड इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, अराउंड 20 स्टेप लगते हैं तो सॉल्व करने के लिए, 20 एंड आल्सो 0 स्टेप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब जो इसका नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का, आपको पता है
a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए। फॉर अ मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन यू शुड हैव a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यू विल स्टार्ट विद x, फिर आप डेरिवेटिव लोगे, यू विल फाइंड आउट dx बाय dt, फिर आप a फाइंड करोगे बाय डूइंग dv बाय dt। तो कम से कम हर एक फंक्शन के लिए 5-5 स्टेप लगेंगे, 4 फंक्शन है तो 4 फंक्शन के 5-5 स्टेप मतलब टोटल 20 स्टेप। और जिसके लिए a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमको ऐसा करना ही नहीं है। लुक आई टेल यू फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। नंबर 1, पावर्स कभी भी सिंपल हार्मोनिक नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी इज गॉन। दूसरा, simple harmonic plus simple harmonic can be simple harmonic if both have the same frequency। इधर ओमेगा इधर 2 ओमेगा है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो एक ही है, खत्म, राइट। तो अगर 2 3 4 5 6 कितने भी टर्म्स हो, पॉइंट नंबर 1, यू शुड हैव सेम frequency, you should never have power greater than 1, it should be always equal to 1। so higher order are never simple harmonic in nature and frequency अगर अलग है तो it is also not simple harmonic in nature। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे टाइम पास करना नहीं, do not try because you will waste around 10 minutes to 15 minutes in solving this। option number A done। अगला क्वेश्चन is a joke which we have heard many times, बहुत बार सुना, बता दो। particle executes simple harmonic oscillation with amplitude A, the period of oscillation is t, the minimum time taken by the particle to travel half the amplitude x equal to a by 2 कब होता है t by 12। हमने CET लेवल में बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस इज द 5th टाइम द सेम क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। ये भी सॉल्व किया है। A simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t if the length of the pendulum is increased by 21%। एक simple pendulum है which is executing SHM with time period t, if the length is increased by 21%, the percentage increase in time period is, याद है कि याद है? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ कितने से बढ़ाया आपने, पहले कितना था तो अब कितना है, L1 प्लस 21% ऑफ L1, ये कौन बन गया L2। तो L2 will be L1 plus 21 by 100 L1, so L2 will be L1 plus 0.21 L1, so L2 will be 1.21 L1, so L2 by L1 will be 1.21। आपको पूछा टाइम पीरियड कितने से बढ़ा, you know time period is directly proportional to square root of length, so T2 by T1 will be under root of L2 by L1। what is L2 by L1, what is 1.21 the root, 1.1, it is 1.1, so T2 is equal to 1.1 times of T1, मतलब it is basically 1 plus 0.1 T1, मतलब T2 is equal to T1 plus 0.1 T1। 0.1 मतलब पता है कितना परसेंट होता है, 10%, तो T1 plus 10% of T1, so answer will be 10%, option number A। next question, last for the day, a mass M attached to a spring oscillates every 2 seconds, oscillates every 2 seconds मतलब time period is 2 seconds। if the mass is increased by 2 kilogram, the time period increases by 1 second। तो अब कितना हो गया टाइम पीरियड, पहले 2 था अब 1 से इंक्रीज हुआ 3 सेकेंड। द इनिशियल मास इज, मतलब व्हाट इज इनिशियल मास m। अब थोड़ा टाइम पहले हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, टू रिमेंबर, लुक टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, t डैश मतलब फाइनल टाइम पीरियड अपॉन t इनिशियल टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m डैश बाय n। t डैश इज t प्लस 1, पहले कितना था 2 था, अब क्या बोला है इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड, तो कितना हो गया, और t कितना है 2। m डैश पहले मास कितना था m, अब कितने से बढ़ाया है 2 से, बोला है ना मास इंक्रीज बाय 2, पिछले केस में कितना था 1 अपॉन m।
square on both sides. 9 by 4. M by 2. M plus 2 by n. Cross multiply. 9n equal to 4n plus 2. 5n equal to 8. Okay. So ठीक है 8. So this is 8. So what you have here is 5n equal to 8. So n equal to 8 by 5. You know what is 8 by 5? You don't know what is 8 by 5? It is 16 by 10. You know what is 16 by 10? 1.6 kilogram. Option number 8. So that's it for today.